یہ کہانی ایک ایسی غریب لڑکی کی ہے جس نے زندگی کے ہر امتحان کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، لیکن اس کا صبر اسے کہاں لے گیا یہ آپ آخر تک دیکھ کر ہی سمجھ پائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بستی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام کنیز فاطمہ تھا۔ اس کے والد بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ گھر اور بیمار ماں کی ذمہ داری اس معصوم سی بچی پر تھی۔ گھر میں تنگ دستی تھی، کبھی کھانا ہوتا کبھی نہیں، لیکن کنیز فاطمہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ روز صبح اٹھ کر اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی اور پھر تھوڑی سی تعلیم حاصل کرنے اسکول چلی جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ امید ہوتی تھی کہ اللہ ضرور آسانی پیدا کرے گا۔ لوگ اس کی غریبی کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن کنیز فاطمہ ایک مضبوط ایمان والی بچی تھی اور اسے امید تھی کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ایک دن اس کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج ضروری ہے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ لڑکی نے ہمت نہیں ہاری۔ کنیز فاطمہ دن رات محنت کرنے لگی، چھوٹے موٹے کام کرتی رہی اور اپنی ماں کا علاج کرواتی رہی۔ کنیز فاطمہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتی، اے اللہ میری ماں کو صحت عطا فرما۔ کچھ وقت کے بعد اس کی ماں کی حالت بہتر ہونے لگی، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب ان کی زندگی بدل گئی۔ آخر کار کنیز فاطمہ کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ایک دن اچانک اس کا ماما، جو کئی سالوں سے ان سے دور تھا، ان سے ملنے آیا۔ جب اس نے ان کی حالت دیکھی تو وہ بہت رنجیدہ ہو گیا۔ گھر کی تنگی، ماں کی بیماری اور کنیز فاطمہ کی خاموش جدوجہد دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے فوراً ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ نہ صرف ان کے علاج کا انتظام کیا، بلکہ کنیز فاطمہ کی تعلیم اور بہتر مستقبل کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی۔ وقت کے ساتھ وہ لڑکی ایک کامیاب اور باعزت انسان بن گئی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک ہی گھر میں پلنے والی دو بہنیں، ایک شکر گزار اور دوسری ہمیشہ ناشکری۔ آخر انجام کیا ہوا؟ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر محنتی خاندان رہتا تھا۔ ابو، امی اور ان کی دو بیٹیاں ایک پرانے ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتی تھیں۔ چھت پر کہیں کہیں سوراخ تھے اور سردیوں میں بارش کا پانی زمین پر گرتا۔ کھانے کے لیے زیادہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن گھر کا ماحول محبت اور امید سے بھرا ہوا تھا۔ بڑی بیٹی فاطمہ ہمیشہ خوش مزاج اور صابر تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی خوشی تلاش کر لیتی اور کبھی اپنی قسمت پر شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ امی ابو کی مدد کرتی، گھر کی صفائی اور کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ چھوٹی بیٹی نادیہ بالکل اس کے برعکس تھی۔ وہ ہر چیز پر ناخوش رہتی، شکایت کرتی اور کبھی شکر گزاری نہیں کرتی تھی۔ اگر کھانے میں کوئی چیز کم ملتی تو فوراً ناراض ہو جاتی اور گھر کی حالت پر روتی۔ ایک دن صبح ابو نے تھوڑا سا اناج خرید کر گھر واپس آئے۔ امی نے جو کچھ بھی تھا کھانے کے لیے تیار کیا۔ فاطمہ نے خوش دلی سے سب کے لیے کھانا لگایا اور کہا، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں آج یہ دیا ہے، شکریہ ادا کریں۔ نادیہ نے جھنجھلا کر کہا، صرف اتنا؟ اور کھانے میں میٹھا کیوں نہیں؟ ہمیں دوسروں کے گھر کی طرح اچھا کھانا کیوں نہیں ملتا؟ امی نے صبر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نادیہ نے کان نہیں دھرے۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک بزرگ آئے جو نصیحت کے لیے گھروں میں جاتے تھے۔ جب وہ نادیہ کے گھر پہنچے تو فاطمہ نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور جو بھی کھانے میں تھا پیش کیا۔ نادیہ نے بھی کچھ پیش کیا، مگر وہ غرور اور ناخوشی کے ساتھ تھا۔ بزرگ نے نادیہ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹی، تمہاری زندگی میں خوشی کہاں ہے؟ تمہارے پاس ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے، پھر بھی تم ناخوش ہو؟ نادیہ کچھ نہ بول سکی۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، جو صبر اور شکر نہیں جانتا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر سکھاتا ہے۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک طوفان آ گیا۔ وہ رات پورے گاؤں والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ کچے مکان کا برا حال ہو گیا تھا۔ نادیہ خوفزدہ ہو گئی، مگر فاطمہ نے صبر اور ہمت سے کام لیا۔ فاطمہ نے ابو امی کے ساتھ مل کر گھر کو بچانے کی کوشش کی۔ نادیہ نے پہلی بار دیکھا کہ صبر کرنے والے انسان مشکل میں بھی سکون سے کام کر سکتے ہیں
और नाशुक्री इंसान को सिर्फ परेशानी में डुबो देती है। नादिया की तब्दीली। तूफान के बाद नादिया ने सोचा कि अगर वो हमेशा शुक्रगुजारी करे और सब्र करे तो जिंदगी कितनी आसान और खुशगवार हो सकती है। उसने फातिमा की तरह खुश रहना सीखा, हर छोटी खुशी पर शुक्र अदा किया और घर का माहौल दोबारा मोहब्बत और सुकून से भर गया। कहानी का इखलाक। सब्र और शुक्रगुजारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। मुश्किलात हर किसी को आती हैं, मगर सब्र से हम उन पर काबू पा सकते हैं। नाशुक्री इंसान को हमेशा दुख और परेशानी देती है, जबकि शुक्र इंसान को खुशी और सुकून देती है। ये कहानी है एक मासूम लड़की की, जिस पर उसकी सौतेली माँ और बहन ने जुल्म किया। एक खूबसूरत मगर सादा से गांव में एक मेहनती आदमी अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी आयशा निहायत नर्म दिल, फरमाबरदार और साबिर थी। वो अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक आयशा की अम्मी बीमार पड़ गईं और चंद ही दिनों में वो दुनिया से रुखसत हो गईं। घर की रौनक जैसे खत्म हो गई। आयशा की मुस्कुराहट भी मांद पड़ गई। कुछ महीनों बाद आयशा के अब्बू ने दूसरी शादी कर ली ताकि घर संभल सके। नई अम्मी अपने साथ अपनी बेटी नायला को भी ले आईं। शुरू में वो आयशा से प्यार से बात करती थी, मगर वक्त के साथ उनका रवैया बदलने लगा। अब आयशा से ज्यादा काम करवाया जाता, छोटी छोटी बातों पर डांट पड़ती और अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता। नायला भी अपनी माँ की बातों में आकर आयशा से दूर रहने लगी। कभी उसका मजाक उड़ाती, कभी उसे तंग करती। रात को जब सब सो जाते, आयशा चुपके से आंसू बहाती, मगर वो हर बार अपने दिल को समझाती, अल्लाह मेरे साथ है, मुझे सब्र करना है। वो सुबह जल्दी उठती, पानी भरती, झाड़ू लगाती, खाना बनाती और बगैर किसी शिकायत के सब काम करती रहती। उसके चेहरे पर थकन तो होती, मगर शिकायत नहीं होती थी। एक दिन सौतेली माँ अचानक शदीद बीमार हो गई। घर के सारे काम रुक गए। नायला घबरा गई, क्योंकि उसे ना खाना बनाना आता था और ना घर संभालना। ऐसे में आयशा आगे बढ़ी। उसने अम्मी को दवा दी, खाना बनाया, घर साफ किया और नायला को भी तसल्ली दी। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि खुलूस था। नायला ने हैरान होकर देखा, ये वही आयशा है जिसे मैं तंग करती थी और आज यही हमारी मदद कर रही है। इसका दिल भर आया। वो आयशा के पास आई और आहिस्ता से बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हम बहनें हैं। सौतेली माँ भी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आयशा को पास बुलाया और कहा, बेटी, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। तुमने जो सब्र और मोहब्बत दिखाई वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आयशा को वो मकाम मिला जिसकी वो हकदार थी। नायला उसकी सच्ची दोस्त बन गई और घर में दोबारा खुशियां लौट आईं। कहानी का सबक, सब्र कभी जाया नहीं जाता। अच्छा अखलाक सबसे बड़ी ताकत है। बुराई का जवाब अच्छाई से देने वाला ही असल कामयाब होता है। एक मासूम बच्ची की ऐसी आखिरी ख्वाहिश जिसे सुनकर हर कोई रो पड़ा। वो बस अपनी फौतशुदा माँ के पास जाना चाहती थी। क्या उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो सकेगी? एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक मासूम सी लड़की रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम सा चेहरा हर किसी का दिल मोह लेता था। लेकिन इन आंखों के पीछे एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। आयशा की उम्र सिर्फ 8 साल थी जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई।
वो दिन आयशा की जिंदगी का सबसे तारीक दिन था। इस दिन के बाद उसके चेहरे की मुस्कुराहट जैसे कहीं खो गई। उसका बाप अहमद एक मेहनती आदमी था। वो सुबह से शाम तक काम करता ताकि घर का खर्च चल सके, लेकिन अकेले घर संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उसने दूसरी शादी कर ली। शुरू में आयशा को लगा कि शायद अब उसे माँ की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन हकीकत उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा सख्त थी। सौतेली माँ शाजिया बाहर से तो नर्म और हंसमुख लगती थी, लेकिन अंदर से उसका दिल सख्त था। वो आयशा से छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती। ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता आयशा के लिए घर घर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मुकाम बन गया जहां वो सिर्फ डांट और सजा पाती थी। जैसे ही आयशा के अब्बू काम पर चले जाते तो सौतेली माँ उस पर जुल्म करना शुरू कर देती और घर के सारे काम आयशा से करवाती। और अगर कहीं जरा सी गलती हो जाती तो सजा उसका इंतजार कर रही होती। आयशा कभी शिकायत नहीं करती थी, वो बस खामोशी से सब कुछ सह लेती थी। हर रात जब सब सो जाते वो आहिस्ता से छत पर चली जाती, आसमान की तरफ देखती और अपनी माँ को याद करती। अम्मी, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, लेकिन उसे पोंछने वाला कोई नहीं था। एक दिन स्कूल में उसकी टीचर ने उससे पूछा, आयशा, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? आयशा ने सिर्फ इतना कहा, मुझे अम्मी याद आती हैं। टीचर की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन वो कुछ न कर सकी। वक्त गुजरता गया और आयशा दिन ब दिन कमजोर होती गई। एक दिन उसे तेज बुखार हो गया। उसका जिस्म जल रहा था। सौतेली माँ ने कहा, ड्रामा मत करो, जाकर काम करो। आयशा बर्तन धो रही थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिरते गिरते बची, पर सारे बर्तन गिर गए। बर्तन गिरने की जोरदार आवाज से आयशा के अब्बू आ गए, जो आज घर में ही मौजूद थे। आयशा के अब्बू ने आयशा को इस हालत में देखा तो उसके होश उड़ गए। वो फौरन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मुआयना किया और संजीदा लहजे में कहा, आप बहुत देर से लाई हैं, बच्ची बहुत कमजोर हो चुकी है। ये अल्फाज अहमद के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। वो आयशा के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। आयशा ने आहिस्ता से आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब्बू, आप रोएं मत। अहमद मजीद टूट गया। बेटा, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। आयशा ने आहिस्ता से कहा, अब्बू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर उसने कमजोर आवाज में कहा, बस एक आखिरी ख्वाहिश है। अहमद ने फौरन कहा, बेटा बताओ, मैं पूरी करूंगा। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अम्मी के पास जाना है। ये सुनकर अहमद जैसे पत्थर का हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कमरे में खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद आयशा की सांसें आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस दिन अहमद को एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटी को खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी खामोश तकलीफ को नजरअंदाज किया।
लेकिन अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था सिवाय पछतावे के। अपने बच्चों को वक्त दें, मोहब्बत दें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी तवज्जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरा शहजादा, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। ये कहानी है एक अमीर दोस्त और एक गरीब दोस्त की, मगर ईद ने सब कुछ बदल दिया। एक छोटे से शहर में दो गहरे दोस्त रहते थे, अहमद और बिलाल। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, साथ खेलते और एक दूसरे के बगैर उनका दिन मुकम्मल नहीं होता था। मगर उनकी जिंदगियों में एक बड़ा फर्क था। अहमद के अब्बू एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, जबकि बिलाल एक गरीब मजदूर का बेटा था। जैसी जैसी ईद उल अजहा करीब आ रही थी, पूरे शहर में खुशी का माहौल था। गलियों में जानवर आ रहे थे, बच्चे खुशी से झूम रहे थे और हर घर में तैयारी हो रही थी। एक दिन अहमद के अब्बू एक बहुत ही खूबसूरत, बड़ा और महंगा बकरा घर लाए। उसके गले में रंग बरंगी माला थी और वो देखने में बहुत दिलकश लग रहा था। अहमद खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो फौरन बिलाल के पास गया और बोला, बिलाल, चलो मेरे घर, मैं तुम्हें अपना बकरा दिखाता हूँ। बिलाल अहमद के साथ गया, बकरा देखा, मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में हल्की सी उदासी भी थी। अहमद ने फख्र से कहा, देखा, इस बार हमारा बकरा सबसे अच्छा है। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, हाँ, बहुत खूबसूरत है। अगले दिन अहमद ने पूछा, तुम लोग कौन सा जानवर ला रहे हो? ये सुनकर बिलाल कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, हम इस साल कुर्बानी नहीं कर सकेंगे, अब्बू के पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर अहमद पहली बार खामोश हो गया। उसने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि हर कोई कुर्बानी नहीं कर सकता। उस रात अहमद को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार बिलाल का उदास चेहरा याद कर रहा था। सुबह वो अपने अब्बू के पास गया और पूछा, अब्बू, क्या कुर्बानी सिर्फ महंगा जानवर खरीदने का नाम है? उसके अब्बू ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, कुर्बानी असल में हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का इरादा किया। कुर्बानी का मतलब है अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिश, अपनी मोहब्बत और अपनी खुशी भी कुर्बान करना। अहमद ने दोबारा पूछा, तो क्या गरीब लोग कुर्बानी नहीं कर सकते? अब्बू मुस्कुराए, जो इस्तिताअत रखता है उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन जो नहीं कर सकता वो भी अल्लाह के नजदीक कम नहीं होता। अल्लाह नियत और दिल को देखता है। ये बात अहमद के दिल में उतर गई। ईद का दिन आ गया। हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही थीं। अहमद के घर में भी कुर्बानी हुई, मगर इस बार अहमद के चेहरे पर वो फख्र नहीं था, बल्कि एक संजीदगी थी। कुर्बानी के बाद अहमद ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, क्या हम अपने गोश्त का बड़ा हिस्सा उन लोगों को दे सकते हैं जिनके पास कुछ नहीं, खास तौर पर बिलाल के घर? अब्बू ने खुश होकर कहा, बेटा, तुमने आज असल कुर्बानी को समझ लिया है। अहमद ने खुद अपने हाथों से गोश्त पैक किया और बिलाल के घर पहुंच गया। बिलाल के घर का दरवाजा खुला तो वो हैरान रह गया। ये सब हमारे लिए? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि खुशी तब मुकम्मल होती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटें। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसके वालिद ने भी दुआ दी। बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन अज्र दी। उस दिन पहली बार बिलाल के घर में भी ईद की खुशी पूरी तरह आई। खाना पका, सबने मिलकर खाया और दिलों में शुक्र और मोहब्बत भर गई। शाम को अहमद और बिलाल साथ बैठे थे। बिलाल ने कहा, आज मुझे ऐसा लगा जैसे हमने भी कुर्बानी की है। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, असल कुर्बानी यही है, अपने हिस्से की खुशी दूसरों को देना। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि दिल की नीयत, ईसार और दूसरों के साथ खुशी बांटने का नाम है। अल्लाह के नज़दीक वही कुर्बानी सबसे कीमती है जिसमें खुलूस और इंसानियत हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।
और ऐसी मजीद दिलचस्प और सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। आपकी मोहब्बत और ताउन हमारे लिए बहुत कीमती है।